तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो से कनेक्ट करते हुए प्रीफिक्सेस के बारे में बताऊंगा नोमेनक्लेचर के अंदर। तो नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्सेस को हम लोगों ने डिवाइड किया है कितनी कैटेगरीज में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रीफिक्सेस को आपने डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रीफिक्स में हम लोगों ने क्या लिया है, नंबर 1 एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स कौन से एल्काइल ग्रुप्स, जिनका पेरेंट चेन में नंबर नहीं आ पाता है। मींस पेरेंट चेन में जब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते समय नंबरिंग करते हैं तो एल्काइल ग्रुप वो जो नंबरिंग ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। प्रीफिक्स इज जस्ट लाइक अ सर्वेंट ऑफ अ बिग बंगलो, राइट। तो उसको पहले लिखा जाता है हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइल ग्रुप्स which don't get number in parent chain. For example, if we have methyl group, then the prefix name of this methyl group will be methyl with abbreviation. Sometimes we use abbreviation, it is Me. Then if it is C2H5, prefix name will be ethyl, abbreviation can be Et. Similarly, CH2, CH2, CH3, it will be propyl, then we use Pr. If it is just like this, CH3, CH3 and H, then we will call it as isopropyl. Isopropyl. So iso-Pr. And if the carbon atom has all the methyl groups, then we will call it as neobutyl. Neobutyl or tertiary butyl, and the abbreviation is neobut. Okay, so these are the alkyl groups which do not get numbering in the parent chain and they will be treated as prefix. I am taking some examples for this. Okay, just see the example. I have taken 5 carbon atoms with one COOH group, and here it is methyl group, here it is ethyl group. You can do the numbering from the functional group 1, 2, 3, 4 and 5. Valency of carbon atom should be 4. So you can use hydrogen at all the places to make the valency 4. Now write down the name of this compound. In the previous video I told you the rule of naming. First of all, write down prefix. Then write down word root or root word you can say, then primary suffix and then secondary suffix. It's a simple formula for writing the IUPAC name. So alphabetical order में लिखते हैं बच्चों। तो क्या करना है, 4 ethyl, ethyl E से आता है abbreviation में, so we will call it as 4 ethyl 3 methyl, and carbon atom 5 है तो word root हो जाएगा pent, carbon to carbon single bond है तो हो जाएगा ane, and then COOH is called as oic acid. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग लिख लेते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 ethyl 3 methyl, वर्ड रूट क्या है, पेंट, प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, सेकेंडरी सफिक्स इज व्हाट, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज ओइक एसिड। अब आप इसको एज सच ऐड कर दीजिए, क्या नाम हो जाएगा, 4 ethyl 3 methyl, वर्ड रूट पेंट एन ओइक एसिड। ध्यान रखेंगे बच्चों, पेंटेनोइक एसिड लिखते समय इस ई को हम लोग रिमूव कर देंगे, बिकॉज ई के बाद वोवल ओ आ रहा है तो ओ को लिखना है, ई को नहीं लिखना है। जब भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवल से स्टार्ट होता है तो एल्केन का ई उसमें से हटा देते हैं।
ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दिस क्लास ऑफ प्रीफिक्स. सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट class of this prefix, and that is called as some functional groups which are always treated as prefix. कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हमेशा हम लोग प्रीफिक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे, उसको देख लीजिए. हालांकि पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, नाइट्रोसो and alkoxy. This is the class and this is the prefix name. Prefix name for Cl is chloro, for bromo Br is bromo, for iodine iodo, fluorine fluoro, for NO2 nitro, for NO it is nitroso and for OR it is alkoxy. एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो R है, इस R को हम लोग क्या ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं. Then it will be called as, in the case of OCH3, suppose that it is OR, that means OCH3, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी. ठीक है, ऐसे ही सपोज करो हमारे पास C2H5 आ गया, देन हम लोग क्या बोलेंगे, इथॉक्सी. As such, right? So this is the class of prefixes in the category number 2. So category number 2 में हमने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीख लिया कि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनको हमेशा एज ए प्रीफिक्स ही हम लोग को यूज करना है. हम लोग को उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही यूज करना है, क्योंकि प्रीफिक्सेस जब भी लिखे जाएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे जाएंगे. ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे अपना. क्या करेंगे, एक ग्रुप ले लीजिए कोई भी. चलिए हमने एमाइड ले लिया इस बार, CONH2. ठीक है, यहाँ पर हम लोग Cl लिख लेते हैं, इधर Br लिख लेते हैं, इधर चलिए CH3 भी लिख लेते हैं, बढ़ा लेंगे कितने भी, और एक डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं. ठीक, तो अब नंबरिंग करनी है आपको. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन प्रीफिक्स है, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स है, वर्ड रूट क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहला काम क्या करें, H लगा के कार्बन की वैलेंसी 4 करें. देखिए इसकी ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे H लगा देंगे, इसकी 4 हो गई, इधर H लगा देंगे, इसकी 4 हो गई, यहाँ H लगा दीजिए तो इनकी भी 4 हो गई. अब नंबरिंग कीजिए वहां से जहां से सेकेंडरी सफिक्स पास पड़ता है, मतलब कि एमाइड ग्रुप. 1 2 3 4 5 एंड 6. क्लियर, तो हम लोगों ने नंबरिंग कर ली. 6 कार्बन एटम है इस कंपाउंड में. प्रीफिक्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं, प्रीफिक्सेस हमारे पास है, देखिए एक तो ब्रोमो है, एक मिथाइल भी है जिसको नंबर नहीं मिल पाया एल्काइल ग्रुप, और एक क्लोरो है. इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए. तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, डैश लगाएंगे. हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, कैपिटल लेटर से पहला आईयूपीएसी नेमिंग करते समय जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा. तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो के बाद 3 क्लोरो, देन 5 मिथाइल. हो गए तीनों प्रीफिक्सेस हमारे क्लियर. अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड रूट. वर्ड रूट इज हेक्स फॉर 6 कार्बन एटम है तो डैश हेक्स, वर्ड रूट भी हो गया. अब प्राइमरी सफिक्स में आपको बताना है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन के साथ उसको शो करना है. 5 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे आप, हेक्स डैश 5 इन, डबल बॉन्ड के लिए इन बोलते हैं. और उसके बाद लास्ट में आपको सेकेंडरी सफिक्स लगा देना है. CONH2 के लिए आप एमाइड लिखते हैं तो लिख देंगे इन अमाइड. तो ये आपका पूरा आईयूपीएसी नेम इसका आ गया. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है, और कब भी नोट कर लीजिएगा आपने. इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि आईयूपीएसी नेम लिखते समय हम लोगों को अभी एक कैटेगरी बची है इसकी. पहले कुछ रूल्स सीख लेते हैं हम लोग. नंबरिंग कैसे करते हैं, चेन को सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, उसको हम लोग सीख लेते हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड कैटेगरी ऑफ द प्रीफिक्स क्या है. ठीक है,
डाल देता हूं, सिलेक्शन ऑफ चेन एंड नंबरिंग। चेन का सिलेक्शन कैसे करना है और नंबरिंग कैसे करनी है, ये आप लोग को सीखना है। सबसे पहला तो रूल है क्या, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। क्या करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हम लोग को लंबी चेन चुननी है। जैसे एग्जांपल से क्लियर करें इस चीज को, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, यहां से हम ब्रांच निकाल देते हैं इसकी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसमें 7 आ गई ना, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6। हम लोग को लंबी चेन चुननी है, हम इधर से एक ब्रांच और निकाल देते हैं। चलिए अब आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों में आपको 8 8 मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर एक और बढ़ा लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सी पॉसिबल आपके लिए हो पा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। ये वाली चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी पेरेंट चेन होगी, बिकॉज ये सबसे लंबी चेन है, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्लियर, ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल देखिए, अब इसका नाम तो लिख ही सकते हैं आप लोग, 5। अब ये आपने चुन ली है मेन चेन, तो ये वाला बन गया क्या, प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स बन गया। और 5 पे आप क्या लिखेंगे, नाम भी लिखते जाए साथ साथ, 5 इथाइल। 2 कार्बन एटम है तो इथाइल ग्रुप होगा, 1 कार्बन एटम होता है तो मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 3 कार्बन एटम है तो 5 पे ही प्रोपाइल लगा हुआ है, इसका मतलब। और वर्ड रूट हमारे पास क्या है, 9 कार्बन एटम है तो नॉन हो गया, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन हो गया, नॉन एन, सिंपल। क्लियर हो गया, ओके। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ चेन ही कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि इस बार अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ है, चेन में मल्टीपल बॉन्ड दिया हुआ है, तब क्या करना है। तब एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो उसको तो चेन में शामिल करना ही करना है, चाहे चेन छोटी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रूल है। मल्टीपल बॉन्ड must be included in parent chain। दूसरा रूल हमारे पास ध्यान से देखिए बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स है यहाँ पे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 हो जाते हैं। तो ये चेन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 में छोटी तो हो रही है, बट ये मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो गया है। और ये हमारी प्रायोरिटी है कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड को हमें पेरेंट चेन में शामिल करना ही है, मतलब नंबर देना ही देना है, ठीक है, चाहे चेन छोटी हो जाए। तो चेन छोटी हो गई, लेकिन तब भी हमने इसको इंक्लूड किया है। और जितनी इसको इंक्लूड करने के बाद जितनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल हो सके आप उसको उतना लंबा चुन लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन के लिए इथाइल होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 इथाइल। कितने कार्बन एटम है वर्ड रूट के लिए, हेक्स, 6 है ना, 6 के लिए हेक्स बोलते हैं। और 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 इन, तो 2 इथाइल हेक्स 1 इन, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड रूल आ गया फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेन एंड नंबरिंग वाले कॉलम में। आप लोग इसको नोट करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे, फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। हाँ तो बच्चों थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड रूल क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपके पास में 2 इक्वल लेंथ की चेन पॉसिबल है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई हम लोग कौन सी चेन सेलेक्ट करें। सपोज कीजिए एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया, 1 2 3 4 और 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमारे पास तीन तरफ से एक जैसी 7 कार्बन एटम की चेन है, हम कौन सी चूज करें।
तो इसमें हमें ध्यान रखना सबसे पहले, अगर मान लीजिए हमारी ये चेन है, इसमें हमने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, साइड चेन एक और लगा दिया, ठीक है, एक यहां भी लगा दिया। C स्टैंड्स फॉर मिथाइल, ध्यान रखिएगा, C स्टैंड्स फॉर मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल को शो करेगा, आप इतना समझ ही गए आप लोग। तो ब्रांचिंग कर दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, वो सब कर लेंगे आप। अब आपको चूज करना है कि हमारी पेरेंट चेन कौन सी होनी चाहिए। हमारी पेरेंट चेन वो होनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, ध्यान रखेंगे इस बात को, वो होगी पेरेंट चेन जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। अब ब्रांचिंग हमारी किस चेन में सबसे ज्यादा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारी जो ब्रांचिंग कितनी आ रही है, 1 यहां से आ रही है, सेकंड इधर हो गई, थर्ड इधर हो गई, फोर्थ इधर हो गई, ठीक है, 4 ब्रांचिंग आर देयर। और अगर हम लोग सीधे आते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे आते हैं सीधे, तो 1 ब्रांचिंग, सेकंड ब्रांचिंग, थर्ड ब्रांचिंग, बस 3 ही है। अगर सीधे आते हैं तो 3 ब्रांचिंग हुई, और ऐसे करके आते हैं तो क्या होता है, देखिए इस साइड से अगर हम लोग ऐसे आएंगे तो फर्स्ट ब्रांचिंग, सेकंड ब्रांचिंग, बस 2 ही है। तो ये जो मैंने नंबरिंग लिखी है आपके सामने, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, इसलिए हम लोग को इसको चूज करना है। तो थर्ड रूल यही कहता है, इफ 2 equally long chains are there, then we select the chain having maximum number of side chains. Side chain is also known as branching, right? तो ये हमारे पास थर्ड रूल हो गया। थर्ड रूल का आपको एग्जांपल भी दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसका नाम भी लिखिए, नाम तो लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है, खूब सारे जितने आ जाए सामने सबका कंपाउंड्स का नाम लिखना है आपको। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो नॉमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए। देखिए 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 2 चैप्टर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो ऑर्गेनिक में आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, आपका पहला स्टेप बहुत स्ट्रांगली रखेंगे और समझते हुए चलेंगे, चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। देखिए 2 पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 4 पर यहां देखिए प्रोपाइल ग्रुप है, मैं सर्कल बना दे रहा हूं, 5 पर फिर मिथाइल ग्रुप है, 6 पर फिर मिथाइल ग्रुप है। तो कितने मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, 2 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 4 पे प्रोपाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली देखें तो मिथाइल हमारा जो है वो M से स्टार्ट होता है, तो 2, 4, 6 ट्राई मिथाइल, क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल, T कैपिटल कर दीजिएगा, फर्स्ट लेटर मैंने बोला कैपिटल होना चाहिए, ट्राई मिथाइल, फिर हाइफन दीजिए। 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा है 4 प्रोपाइल। अब वर्ड रूट इज व्हाट, 7 कार्बन एटम्स आर देयर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है सब में, यहां से यहां तक चले हैं सिंगल बॉन्ड, तो हेप्ट एन। तो क्लियर देखिए सब कुछ, यहां से यहां तक आप चले आ रहे हैं, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। हेप्ट क्या है, वर्ड रूट है, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है ही नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें नहीं है। आई थिंक क्लियर हुई आप लोग को ये बात पूरी, ये रूल क्लियर हो गया अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। ये फोर्थ रूल क्या है हमारा, फोर्थ रूल का एक नाम दिया है मैंने आपको, नाम ये है इसमें, इसे बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल ये क्या कहता है, अगर आप लोग कंपाउंड का नाम लिखते समय लेफ्ट साइड से या राइट साइड से फंस जाते हैं कैसे लिखें, तो उसके लिए ये लोएस्ट सम रूल हेल्प करता है। कैसे करता है, सपोज करिए आपके सामने ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम की चेन है, और आपके पास यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, सपोज करिए ऐसी कंडीशन आपके पास में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो कंफ्यूजन है ना, इधर से भी मिथाइल लगा हुआ है, इधर से भी सेकंड मिथाइल है। आप क्या करिए, लोकेंट्स का सम कर लीजिए, लोकेंट्स का सम करिए। लोकेंट्स का सम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर से करिए 1 2 3 4 5
6। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सम कितना आ रहा है लोकेंट्स का, लोकेंट्स का मतलब ये साइड चेन, ठीक है। तो 2 पे है आपका लेफ्ट टू राइट में, प्लस 4 पे है और 5 पे है, कितना हुआ 11 हो गया। राइट टू लेफ्ट में आइए, राइट टू लेफ्ट में इधर जाएंगे हम लोग, तो 2 पे दिखाई पड़ रहा है हमारा साइड चेन, 3rd पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, 5 पे दिखाई पड़ रहा है, कितना हुआ 10 हुआ। लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली ये सम कम होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो ये लोअर सम हमारा कितना 10 है, इसलिए राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग हमारी सही है, लेफ्ट टू राइट हमारी नंबरिंग सही नहीं है, ठीक है। सम शुड बी लोएस्ट। तो सम ऑफ लोकेंट्स, इसको मैं लिख देता हूं, सम ऑफ द लोकेंट्स शुड बी लोएस्ट। ओके, अब नाम लिख लीजिए इसका। अब ये वाली सही हो गई, ये गलत होगी तो वाली छोड़ दीजिए। 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 5 पर मिथाइल है, तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट हो गया हमारा हेक्स, सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो क्या हुआ ए, ये आईयूपीएसी नेम हो गया इसका। ये हमारा 4th रूल हो गया, ठीक है। अब देखिए 5th रूल क्या कहता है, साथ ही साथ देख लें। अगर मान लीजिए सपोज करिए आपके कंपाउंड में 3rd पोजीशन पर इधर से मिथाइल लगा हुआ है और 3rd पोजीशन पर इधर से इथाइल लगा हुआ है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग ये देखेंगे अल्फाबेटिकली इन्हें क्या बोला जाता है, जो एब्रीविएशन में पहले आएगा उसको हम लोग प्रेफर करते हुए नंबरिंग उस साइड से करेंगे। तो हमारा इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इथाइल ई के लिए इस साइड से करते तो 1 2 3 4 5 5th नंबर पे आता, ठीक है। इस साइड से करेंगे 3rd पे आ रहा है, तो ई को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं एम से पहले, और वो कहां से लो है, कहां से हमारा क्लोजेस्ट पड़ रहा है, हमारा इस साइड से क्लोजेस्ट पड़ रहा है, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे इसकी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नाम क्या लिखोगे, नाम लिखते समय भी अल्फाबेटिकली 3 इथाइल, 5 मिथाइल और 7 कार्बन एटम्स के लिए क्या करोगे, हेप्ट एन, ठीक है। हेप्ट हो गया, देखो 3 इथाइल 5 मिथाइल इज prefix, hept is word root, an is primary suffix, this is word root, this is prefix। तो ये रूल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जांपल हम लोग एक और ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने क्या किया, 4 कार्बन एटम लिए, इधर से हमने Cl लगा दिया, इधर से Br लगा दिया, राइट। अब नंबरिंग किस साइड से करें, जहां से अल्फाबेटिकली बोलना हमारे लिए इजी पड़ता है, यानी कि पहले आएगा ब्रोमो, बी पहले आता है, क्लोरो सी बाद में आता है, तो ये इधर से क्लोज पड़ेगा 1 2 3 4। नंबरिंग कैसे करेंगे, 2 ब्रोमो, नंबरिंग होगी 1 2 3 4, नेम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। नेम लिखते समय मैंने पहले से बोला आपको प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या हुआ, ब्यूट, या कैपिटल कर दीजिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका। ये रूल भी क्लियर हो गया 5th वाला। इसके बाद हम चलते हैं आगे के रूल्स की तरफ। तो बच्चों अगली क्लास में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा आइसो, नियो, टर्शरी, सेकेंडरी, ब्यूटाइल, पेंटाइल, प्रोपाइल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना के पहले से रखे हैं, इनको समझाऊंगा आपको अगली क्लास में कि ये कैसे बनाए जाते हैं और ये क्या होते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।